I grew up in very small village. Still, we don't have any internet connectivity there. 3-4 days a podcast by this Sridhar Vemuri, the founder of Zoho. He also talks on the same line, so I'm seeing a hint of that greatness. तो फिर PICT में गया, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए. मैं पूछने वाला था गर्लफ्रेंड कब बनी क्योंकि आप बननी चाहिए कहानी में. मैंने कभी किसी को नहीं बताया. This is the first time. I missed one paper. Because that is what makes a person successful, and I really hope you never lose that. इधर बोलो, वो कैमरा वहाँ बोला, बताइए. Life is full of ups and downs. तो फिर आपको give up नहीं करना है. Okay, तो सागर ये बताओ, you come from a very small village in Maharashtra, right? So tell us how it was growing up in that village. Take us through that journey a little bit. So I grew up in very small village, remote village in Raigad, Maharashtra. Still, we don't have any internet connectivity there. Even now? Yes, still that's very challenging. There is no Wi-Fi connectivity. There are no computers still in my village. So maybe in future I want to set up that infra for my village. So that is the situation. But overall, cultural wise, it is one of the best. My village is part of Konkan area. It is situated in many mountains and the river is flowing. So cultural wise, we had that everything for my village. But technical wise or educational wise, it is very difficult. Still, I remember those days when I completed my 7th standard, and for taking next education to complete my high school, I used to walk almost 7 to 10 kilometers daily. Taking that heavy bags, all the books and notebooks, carrying that, and then going through the those tough roads. So that is still the situation for our village. Oh, so they don't have a school after 8th, 9th? Yeah. Okay. So we need to go to another nearest village, and many of students from around all the villages come to there, and they take high school. They complete their high school and then college from that village. But it's very beautiful. I mean, I would always like to invite everyone that you should go to my village and see. Whenever I post something on my WhatsApp or Instagram, then people ask, "Is it real?" I mean, that is kind of nature That's we raw have. beauty. Huh? Yes, raw yes. beauty. Yeah. But yeah, so my long-term goal, if I really want to mention, I don't want to be part of this technical for a very long time. Okay. Because the nature and the village I come from, it gives me peace and the happiness. Sure. Because the people in villages are, what do I say it, like they can live in 10 rupees or with 100 rupees. That's the satisfaction they have. Correct. And I always get inspired from my village people. Absolutely. If I talk to my friend who is earning 25,000 or 1 lakh rupees, they are still struggling, like how to we are not getting enough money. Correct. But if I go to my village and talk to my grandparents, or I always like to go to my village and talk to older people especially to learn from their journey. And they tell us how they have lived this entire life, and I learn from them especially. And to live in small amount or small money, how to live that happy life is true inspiration. Because they don't need a lot of money to be happy, right? They have other things. Yes. They have the sense of community, bonding. Yeah. I'm sure they're celebrating all festivals, everything, right? Yes. That is what gives them happiness. Yes. So we celebrate, as I told you, I come from Konkan area. Right. So we celebrate Ganpati, Holi, and then Dasra. These are very special festivals for us. Of course. Now there is a Sapta, we call it Sapta. Everyone who is staying in cities, all the children come together and celebrate those festivals. So it's very huge for us, cultural wise. Right. So when I hear you, I remember just now watching about 3-4 days a podcast by this Sridhar Vemuri, the founder of Zoho. He also talks on the same line. So I'm seeing a hint of that greatness, right? Because he built Zoho from his village, completely bootstrapped company, listed on New York Stock Exchange. And he was talking exactly what you're saying today, that the reason he came back from Silicon Valley is because he missed
the simplicity of life. Simplicity, yeah. Right? That nuance, and he still travels around in a scooty. He has all the cars of the world, of course, but that is what you're talking about, which is so beautiful. Right? Even my parents are farmers. They are Still farming. Still farming, Wow. and 12 months of the year. What do they farm? So since we get heavy rains in the Konkan side, so for the 6 months we only take rice, Okay. and then after that we take vegetables. अच्छा. Yeah. भुईमुग को क्या बोलते हैं? I don't know. किसको? भुईमुग, that क्या होता है? सिंगदाना. सिंगदाना. हाँ. Singdana, then maka. That's peanut, na? Peanut. Peanut ka Yes, variation. yes. Okay. Then different vegetables. So I have grown up eating those fresh farm fresh vegetables. We have mango entire bag. Wow. Yeah, hapus. भेजा कर यार, तुमसे क्या है? Yes, definitely. Done. तो मुझे लगता है कि I want to live that life, peaceful life, and this city life I don't enjoy it very much. So after earning few money, I mean थोड़ा सा Just पैसा couple of कमाओ, and crores, then not much. फिर जाके गांव में सेटल हो जाओ. And I want to help my village students now to reach to some level. Like they also, I want them to become something in their life, because I did not had any good mentor that time. But now I have reached to this stage. I can guide lot students. So that is why I go to village, different remote areas, and especially those colleges and schools, to teach them what are the different opportunities they can get, what are the different scholarships they have, different domains they can choose. So let's talk about that a little bit, right? So go back to the saga of 11th, 12th class, right? Who's traveling all the time. How did that Sagar think कि यार एक दिन लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो करना है, यहाँ से निकलना है, even if for a while, right? And from there, how did you get admission in PICT, which is one of the top colleges, arguably of the country itself, definitely of Maharashtra? How did that happen? That's very long story. But as long as I remember, I was always studious. Kind of student, but also into sports and the cultural. ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, because I always used to have that fear to talk to girls and other students in my high school. But I knew that I want to get top in my class. मतलब top करना ही है. Okay, वो clear था. Clear था. क्यों? मतलब बचपन से, because I was a middle child, and एक बड़ा भाई होता है, he is everything, like doing everything, sports बहुत अच्छा कर रहा है, and then younger child होता है, उसका बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. Of course, pampered one. And then you are the middle one, जिसको no one is focusing on that. yeah. You're in between. In between. ठीक है. Okay. So I was into that area कि ठीक है, मुझे पढ़ाई करना है, but direction तभी भी पता नहीं था. That was it your way of telling the parents and everybody के मैं भी कुछ हूँ यार, क्या बात कर रहे हो? yeah. And then at least when I top करता था क्लास में, तब at least लोग बात करते थे मेरे बारे में. So that was okay. I still exist somewhere. Absolutely. That mattered a lot. That's your validation from the world. Correct. और फिर in my 10th standard, मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे, he was also my class teacher. Okay. So he knew कि मतलब I am very smart but shy person. Right. Occasionally speaking या फिर occasionally participating in sports and culture. What's his name of that teacher? Sakpal sir. Satpal sir. Yes. मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते, because he was strict. इंग्लिश टीचर थोड़ा होते हैं. तो फिर उन्होंने मुझे मॉनिटर बनाया क्लास का. मॉनिटर ऑफ 150 स्टूडेंट्स. मतलब मुझे सामने जाके पूरा क्लास कंट्रोल करना है. एंड आई यूज्ड टू आई नीड टू मेक श्योर कि सब बच्चे प्रॉपर सब प्रोसेस फॉलो वगैरह कर रहे हैं. तो that was the turning point. I feel कि I felt कि ठीक है, I can manage 150 students easily. If I speak, तो वो है, मुझे बात करना पड़ेगा कैसे भी. और एक पर्सन का मुझे मेंशन करना है, डॉक्टर इन माय विलेज. The doctor in your village.
Okay. What's his name? द वन डे डॉक्टर. The one day. द वन डे डॉक्टर. Okay. सो उन्होंने शिफ्टिंग किया था फ्रॉम सातारा टू आर विलेज, Okay. बिकॉज इट वॉज विलेज. तो फिर नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल में And he's a government doctor. ही वॉज प्राइवेट Or private one. प्राइवेट Private. डॉक्टर. Okay. बट हाँ, लकीली उन्होंने हमारे गांव में शिफ्ट किया Okay. एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग इन आवर हाउस ओनली. मतलब हमने Oh, उनको एक रूम दिया हाँ. एंड वो सुबह शाम आके यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अराउंड विलेज पीपल. Okay. मतलब कोई Okay. हाँ. तो फिर मुझे थोड़ा उनसे भी गाइडेंस मिला, बिकॉज ही यूज टू सी कि आई एम द टॉपर. वो बात करते थे कि क्या चल रहा है क्लास में, तुम्हें क्या करना है. Because he came with that exposure of a comparatively a much bigger city. यस यस. Right. Right. और उनके फादर भी HOD थे, प्रिंसिपल थे फॉर माई हाई स्कूल. Okay. हाँ. Oh, he's from that village. नॉट विलेज, मतलब वो सातारा में थे. अच्छा. देन ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टर्स वगैरह पूरा एंड देन मूव टू विलेज. तो फिर वो मुझे गाइड करते थे हमेशा कि क्या चल रहा है, इंग्लिश सीखो, ये बुक्स पढ़ो, थोड़ा मैथ्स तुम्हें टॉप करना है, 10th में अच्छा परसेंटेज लाओगे देन यू कैन गेट इनटू गुड कॉलेज. उनकी तरफ से मुझे अभी भी सपोर्ट है. अच्छा. हाँ. Okay. व्हेनेवर आई गो टू विलेज आई मेक श्योर कि उनसे मुझे You still meet जाके मिलना है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ. जब टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं उसको. देन ही इंट्रोड्यूस मी टू वन गाय, द शॉपकीपर सन. मतलब हमारे गांव का एक शॉपकीपर है, उनके बेटे से मिलवाया एंड ही वॉज डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग. Okay. हाँ. सो ही इनवाइटेड दैट शॉपकीपर एंड हिज सन टू माई हाउस और उनको बोला कि ही इज ऑल्सो स्मार्ट स्टूडेंट. Right. 10th में अच्छा परसेंटेज लाया है बच्चा, 85 मिला था. Yeah. ओवरऑल इट इज वेरी गुड फ्रॉम Yes, विलेज it's good. Very बैकग्राउंड. good. Yeah. Yeah. तो उन्होंने बोला कि बताओ इसको क्या करना है. तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें डिप्लोमा करना है और लोनेरी जाओगे. तो मैंने बोला हाँ चलेगा. और मुझे ना मेरे विलेज के अलावा और मेरे हाई स्कूल के विलेज के अलावा कुछ भी नहीं पता. मतलब देयर इज सम ठाणे, मुंबई, पुणे तो सुना भी नहीं था. आई एम नॉट लाइंग. मतलब ये बिकॉज दैट वाज माय वर्ल्ड. That's your world, right? That's your small world. Correct. तो फिर स्पोर्ट्स का मैच वगैरह होता था तालुका लेवल एंड माय विलेज, बस उतना ही. Right. तो फिर उन्होंने बोला लोनेरे. मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ा सिटी होगा मैं जाऊंगा. एंड दैट अनदर विलेज और इट्स अ तालुका लेवल. सो इट इज मे बी 100 और 80 किलोमीटर्स फ्रॉम माई विलेज. तो मुझे लगा कि ठीक है ट्राई तो करते. आई गॉट एडमिशन और एडमिशन मिला मुझे इन IT इंजीनियरिंग. Okay. Okay. And my cousin also tried to get engineering admission. He got into chemical engineering. Okay. तो फिर he started saying कि you should try for the next round because IT engineering is not that good. You should try for chemical. So he was again got depressed कि भाई why this is happening with me. I now finally got my IT engineering diploma admission. So let me live my life. Yeah. Still I thought कि let's give it a try. And then I got into my diploma college. Again, all these subjects are in English. तो मेरा speaking, you can see me now as well कि I'm still struggling with Hindi words because that's not my native language. Right. So you're thinking in Marathi and then translating in English. Yeah. That happens with all of us. Yeah. And then I got into diploma college. I met lot of students coming from Mumbai, Thane and Pune, nearby talukas. Very big colleges and English medium student. Right. तो पहले ही ऐसे लग रहा था that I am not going to survive here. But father ने बोला है कि करना है. अगर if you have taken admission to just complete it now. Correct. they took education loan वगैरह करके डिप्लोमा कॉलेज स्टार्ट हुआ. एंड देन मैंने स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. मतलब सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश में. सो आई हैव टू राइट एंड रीड एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश. सो थोड़ा डोमिनेटिंग या फिर वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड बट Inferiority complex sort of के. एक दिमाग में था. देर वॉज अ सागर इन 10th स्टैंडर्ड जिसने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को करके दिखाई, एटलीस्ट टू दैट विलेज एंड हाई स्कूल. नाउ यू कैन डू दिस इन फ्रंट ऑफ दिस गाइज एज वेल. स्टिल आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी गर्ल्स. वो था मुझे कि भाई मैं कुछ बोलने के लिए जाऊँगा और आई डोंट नो व्हाट दे विल से कि इसको ये भी बोलना नहीं आता. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट वन इंसिडेंट. देर वॉज हिंदी स्पीकिंग गर्ल.
सो मैं जब भी बात करता ना तो थोड़ा ऐसा तोड़ मोड़ के जोड़ के स्टेटमेंट बना के बोलता रहा. सो शी सेड कि सागर तुझे हिंदी भी नहीं बोलनी आती. तो इट वाज काइंड ऑफ आई डोंट नो, मतलब बुरा लगा Felt bad, बहुत. of course, of course. बहुत बुरा लगा मुझे. कि ये भी नहीं आता. Then first computer lab Okay. in the diploma. Okay. Everyone from good background. घर पे पूरा कंप्यूटर लैपटॉप है सबके पास. मेरे पास नहीं था. एंड देन आई सैट ऑन दैट फर्स्ट कंप्यूटर लैब. आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग और मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. इफ आई पुश दैट बटन, इज दैट द करेक्ट बटन टू पावर ऑन द कंप्यूटर? यू नेवर नो क्या हो जाएगा उसके बाद. अगर नहीं हुआ तो ये सारे बच्चे मुझ पे हंसने वाले कि इसको इतना भी नहीं आता, किस बैकग्राउंड से है. बट लकीली वही बटन था, पावर था. देन आई स्टार्टेड. दुनिया बदली उसके बाद. हाँ, पूरी दुनिया उसके बाद बदल गई. आई कैन स्टार्ट द कंप्यूटर, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे. आई स्टार्टेड लिविंग इन हॉस्टल. मतलब 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस था मेरे घर से. आई कुड हैव डन दैट, मतलब अप एंड डाउन. बट आई वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स कि हॉस्टल में रहोगे देन यू गेट दैट टाइम टू लर्न. दूसरे बच्चों से मिलोगे फ्रॉम आउट ऑफ योर विलेज, तो फिर और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ज़्यादा बच्चों से सीखने के लिए मिलेगा. फर्स्ट ईयर गॉन, बहुत ज़्यादा फोकस था स्टडी पे. देन सेकेंड ईयर, मेरा जो फर्स्ट ईयर का CR था ना, ही गॉट ड्रॉप्ड आउट अनलकीली. बट आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई मुझे अभी CR बनना है क्लास का, मॉनिटर बनना है. क्योंकि मुझे पता है जब मैं आगे जाऊंगा ना स्टेज पे, तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू हेजिटेट एनीवन. आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग. और वो एक ये भी कॉन्फिडेंस भी आता है आपके अंदर. But that is such an important trait, right? You put yourself in an uncomfortable situation and then the world changes around you. Yes. हाँ. Not a lot of people can do that, right? People take a back step, Yes. right? But I think that trait has served you very well. Yes. आई एग्री, कम्प्लीटली एग्री. उसके बाद फिर सारे बच्चे खुद आके भी बात कर रहे. सो ऑटोमेटिकली जो फियर था ना दूसरे लोगों से बात करने का, वो तो कम्प्लीटली चला गया. एंड आई वॉज ऑलवेज स्टूडियस. तो फिर कॉलेज के प्रोफेसर्स अच्छे से जानते थे. बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सबको पता था कि ही इज़ गोइंग टू टॉप in the final year and he will get golden medal मिलता है एक diploma student का. I don't know this is the right time to talk about that, but I fell in love third year में. मैं पूछने वाला था गर्लफ्रेंड कब बनी क्योंकि आप बननी चाहिए कहानी में. थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में I started dating one girl. मतलब पता नहीं था कि क्या होता है, but I just wanted to You liked her. हाँ. Sure. तो फिर स्टार्ट किया. बट थर्ड ईयर का जो पूरा मार्क रहता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज डिप्लोमा स्टूडेंट. उसके बेसिस पे वी गेट एडमिशन फॉर डिग्री. करेक्ट. सो आई गॉट 85% इन माई फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ थर्ड ईयर. ओके. इतना ट्रोल किया मेरे दोस्त ने, हॉस्टल वाले जो मेरे दोस्त थे. भाई यू आर सपोज टू बी टॉपर. एंड मुझे PICT कॉलेज पता नहीं था. अच्छा. जो मेरे हॉस्टल के जो बाकी बच्चे थे दे वर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल. एंड आई वाज द ओनली वन IT स्टूडेंट. तो फिर उनका डिसाइडेड था दैट दे वांट टू गो इनटू टॉप कॉलेज. LIT नागपुर उनका था. एंड देन कुछ केमिकल के टॉप कॉलेज. और फिर मेरा जो रूममेट था उसने आके बोला देख हमारा ये टारगेट है. एंड इवन बैक बेंचर्स, केमिकल के जो बैक बेंचर्स मेरे क्लास में जो हॉस्टल मेट्स थे, दे यूज्ड टू टेल कि हमें इस कॉलेज में जाना है, तुम्हें किस कॉलेज में जाना है, यू हैव टू गो इनटू PICT. तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ ओके मुझे भी कॉलेज डिसाइड करना पड़ेगा अभी. दिस इज द टाइम. और फिर उनको पता चला कि ही इज नॉट अ टॉपर नाउ, कोई और बन गया टॉपर. एंड इवन ही इज नॉट इनटू लिस्ट. मतलब 85-86 इज वेरी लिस्ट. सो आई ब्रोक अप. घर वालों को पता नहीं है. तो फिर आई ब्रोक अप. एंड इन द हाँ मतलब इट वॉज नॉट गोइंग गुड. एंड देन कुछ होता है, मतलब थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट दैट टाइम. एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दैट फेज आई वॉज गोइंग थ्रू मेडिकल सिचुएशन एज वेल. मतलब थोड़ा दो बहुत मेडिकल मलेरिया और ये भी हुआ था.
सो एज स्ट्रगलिंग विथ माई हेल्थ, जो फाइनल सेमिस्टर था, आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू टॉप दिस टाइम. सो आई गॉट around 96 to 97% in the final semester. Total aggregate became 91. Okay. And I got into PICT, Dream College. I was one of the top college. Yes, of course. टॉप रैंकर इन PICT कॉलेज. तो फिर PICT में गया, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए. जैसे द कॉलेज इज सो पॉपुलर एंड It's got the brightest minds. ब्राइटेस्ट माइंड्स, मतलब प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सब. हाँ. तो फिर वहाँ पे ना छोटे तालाब से बड़े तालाब में, बहुत बड़े तालाब में, वहाँ पे रैंक ही क्लोज होता है 90 प्लस के ऊपर. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 आई गेस. नाउ तो इट इज प्रॉब्ली 98 99. हाँ, 98 99 अभी हो चुका है. PICT में एडमिशन ले लिया, बट उससे पहले एक छोटा सा स्टोरी है. जब मुझे एडमिशन लेना था PICT में, मैंने जाके घर पे बताया कि आई गॉट दिस मच परसेंटेज एंड दिस इज अ कॉलेज. PICT प्राइवेट कॉलेज है. फीस था 1 लाख, 1,10,000. घर वाले ये पूछ रहे मुझे, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू PICT प्राइवेट कॉलेज अगर तुम टॉप कर चुके हो? वी हैव अनदर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तो वहाँ पे ले लो ना. सो आई टोल्ड देम नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई वांट टू गो टू PICT. दे सेड कि वी कैंट अफोर्ड इट. जो तुम्हारा डिप्लोमा का था, that was too much for us because we are famous. And I completely understood that situation. मैंने बोला मुझे बस एक चांस चाहिए, I will take my education loan. मैं खुद से वो क्लियर कर दूंगा, बट मुझे जाने दो, बस मुझे PICT में कॉलेज कंप्लीट करना है कैसे भी करके. So I got admission in PICT. I was happy. And you took the education loan? Yes, I took education loan to complete my bachelor's. Right. फिर PICT में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा माहौल डिफिकल्ट था. एंड PICT इज वन ऑफ द स्ट्रिक्ट कॉलेज. प्रोफेसर्स बहुत अच्छे, एंड इट इज़ फॉर गुड. जो स्ट्रिक्टनेस है, It's for the students. Yes, students. Then I used to see around मेरे जो डिप्लोमा बैचमेट से जो आए थे स्टूडेंट्स, देवर मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं, they figured out their way to gel up with other students and then match to their space वगैरह. उनका हो चुका था, but I was still into that zone कि maybe this is too much for me. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर स्टूडेंट्स है. एंड इन दी फर्स्ट सेमिस्टर ऑफ सेकेंड ईयर मैंने कभी किसी को नहीं बताया. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई मिस्ड वन पेपर. Missed as in failed in one paper? नो, मतलब टाइम टेबल मेरा मिस हो गया. तो फर्स्ट पेपर था मॉर्निंग सेशन में, एंड फ्रॉम सेकेंड पेपर इटसेल्फ आफ्टरनून का टाइम था. सो आई थॉट कि यूजुअली ऐसे ही होता है ना कि एक ही टाइम रहता है. हाँ, एक ही टाइम रहता है. हाँ. But वो सुबह था. एक सुबह हुआ एंड उसके बाद सारे पेपर्स आफ्टरनून में होने वाले थे, और मुझे पता ही नहीं था, वो रियलाइज ही नहीं हुआ. और फिर मैं जाके कॉलेज में गया एंड देन आई वाज चेकिंग रूम, पूरा खाली. ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कोई आया ही नहीं. देन आई चेक्ड, उन्होंने बोला हो गया एग्जाम. आई फेल्ड इन दैट. एंड दैट वाज सेमेस्टर एग्जाम. मतलब जो 70 मार्क्स का जो रहता है ना, वही मैंने मिस कर दिया. अभी मैं किसको बताऊंगा ये, बिकॉज आई क्या बताऊंगा घर पे जाके, क्या बताऊंगा कि मैं एक पेपर में फेल हुआ, तुम्हारा बच्चा जो एजुकेशन लेके हु इज कंप्लीटिंग. एंड देन आप जिस बच्चे के बारे में सबको बता रहे हो कि ही इज अ स्कॉलर, और मेरे कॉलेज के स्टूडेंट को भी मैं बता नहीं सकता था. यू नो कि एक वंस यू आर टॉपर तो फिर यू कैंट से कि एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. दिस इज अ मेजर स्क्रू अप. मेजर. तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया. एंड देन आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट माय वे कि क्या कर सकता हूँ. देन आई गॉट इनटू आर्ट सर्कल. हाँ, कल्चरल. मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार था कल्चर के. ड्रामा, देन स्कीट वगैरह करना, एंकरिंग करना, वो मेरा फेवरेट है. मतलब फ्रॉम दैट आई गेट माई कॉन्फिडेंस. तो फिर आई गॉट इनटू दैट आर्ट सर्कल. लोगों से मिलना वगैरह चालू किया. वो वैलिडेशन चल रहा है. हाँ, वही चल रहा है. बट ना ड्यूरिंग माई PICT, मतलब सेकेंड ईयर, I was walking from Sinhagad campus to PICT college.
used to take me Surat around to PhD, that's far, yeah. very far. हाँ. हाँ, बट पैसा नहीं था ना. Because पैसे बचा रहे थे. हाँ, पैसा बचा रहा था. हाँ. आई वॉज स्टेइंग, मतलब जब मैं PhD में एडमिशन लिया आई वॉज स्टेइंग नियर बाय, बट वो एरिया मुझे जम नहीं रहा था. आई वॉज गेटिंग अगेन हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह होने लगा, एंड इतना डिप्रेशन वगैरह सब कुछ चल रहा था लाइफ में. नो फ्रेंड्स वर देयर, और जो नए बच्चे हैं उनके साथ मुझे जम नहीं रहा था. तो मेरे जो केमिकल के जो फ्रेंड्स थे डिप्लोमा के, दे टुक एडमिशन इन सिंहगढ़ कॉलेज. तो मैंने सोचा कि उनके साथ जाके रहता हूँ, जो भी होगा वो देखा जाएगा. सो आई यूज्ड टू स्टे विद देम. लाइफ में हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं कर सकते ना. नहीं, हाँ. बट मुझे एक एडजस्टमेंट करना पड़ा कि हर रोज जाके आना जाना मुझे वॉक करना पड़ता था. स्टिल आई थिंक दे हैव सम बैरिकेड्स, तो इधर आपको हाईवे पे जाके पूरा बस वगैरह लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू नीड टू वॉक. तो मुझे एक शॉर्टकट मिला, बट स्टिल इट यूज्ड टू टेक 1 hour. हाँ. तो अगेन दैट जर्नी 10th में जो चल रहा था ना, 8, 9, 10, दैट इज द सेम फेज आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग माई PhD कॉलेज. और किसी को पता भी नहीं था. बट लकीली आई गॉट वन ऑफ माई PhD कॉलेज स्टूडेंट, माई फ्रेंड. तो वो ही इज ऑल्सो पंजाबी. आई थिंक पंजाबीज आर वेरी नाइस पीपल. तो कुछ टाइम के बाद उसको पता चला दैट आई ऑल्सो गो फ्रॉम सिंहगढ़ कैंपस. तो मैं उसके साथ बाइक पे रहता था, दैट एरिया, बाइक के ऊपर जाता था. बट देन टाइम मैचिंग वगैरह प्रॉब्लम, सो आई थॉट कि लेट इट गो. हम हमारा जो पुराना रूटीन है ना वही चालू करेंगे. आर्ट सर्कल के लिए 6:30 के बाद, मतलब आपका कॉलेज खत्म होने के बाद, यू नीड टू स्टे एंड देन प्रैक्टिस. ऐसे जो सेटअप वगैरह रहते हैं, सो वी यूज टू मेक हैंड क्राफ्टेड एवरीथिंग. सो 12 बजे के बाद मैं घर पे आता था रात को. और सुबह फिर मॉर्निंग में जाके क्लास अटेंड करना. आई वॉज एंजॉइंग दैट पार्ट ऑफ लाइफ कि ठीक है, जो चल रहा है ना, कॉलेज करो, थोड़ा एंजॉय करो, बाकी देखा जाएगा. 3rd ईयर में आने के बाद आई रियलाइज कि मेरा CGPA तो गया पूरा. आई डोंट हैव वेरी गुड CGPA. एक बैकलॉग है मुझे. आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ मैथ्स. मतलब 2nd ईयर में, अगेन दिस इज द स्टोरी आई नेवर टोल्ड एनीवन, मैथ्स वॉज वीक. मतलब जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, फॉर देम मैथ्स इज वेरी टफ. वेरी टफ. तो आई फेल्ड, मतलब ऑलमोस्ट गोल्डन तक चला गया था. इधर आई पास इट और आई गेट क्या बोलते हैं उसको, 1 year गैप मुझे मिल जाता. सो दैट वाज द स्टेज आई वाज इन दैट. घर पे नहीं बताया अगेन. नो, आई डिड नॉट टेल एनी फ्रेंड्स. जो मेरे केमिकल के दोस्त थे उनको पता था बस. 3rd ईयर में आके मुझे वो क्लियर करना था. 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आई हैड टू क्लियर ऑल दोस बैकलॉग्स. अदरवाइज मुझे इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता ना, और ना ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी. एंड इट्स PICT. अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, व्हाट्स द पॉइंट. करेक्ट. देन आई क्लियर्ड इट. मतलब गोल्डन में जाके आई क्लियर्ड इट फाइनली. एंड आई वाज क्राइंग टू माय फ्रेंड बिफोर दैट पेपर, मैथ्स पेपर, कि भाई क्या होगा, मतलब ये अगर क्लियर नहीं होगा ना, घर पे पता चलेगा मेरे कि आपका बच्चा जो आप इतना स्मार्ट समझते हो अभी तक. एंड ही फेल्ड इन entire college. मतलब he is going to get a drop of 1 year. That's a big thing. Big. Luckily I was preparing a lot. I cleared that subject. Art circle में अच्छा support मिल रहा था दोस्तों से. I used to motivate. 3rd year में आने के बाद I realized that I need to now start preparing for my campus placements as well. तो उसके लिए कुछ एरिया है करवे नगर, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे टेक्निकल एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ाते थे. सो आई यूज्ड टू गो देयर. हाँ, सो करवे नगर में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एप्टीट्यूड और टेक्निकल, जैसे मैंने पहले बताया था, मैथ्स बहुत वीक है. और जो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट होते हैं ना, वहाँ पे पहला ही जो टेस्ट रहता है दैट इज एप्टीट्यूड मैथ्स. करेक्ट. तो कुछ भी करके वो सीखना था. पता था कि होगा, मतलब मोस्टली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग. देन 4th ईयर फाइनल ईयर में आया, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट चालू हो गया. फॉर ऑलमोस्ट 8 months आई वॉज नॉट गेटिंग एनी, क्या बोलते हैं उसको,
that I was not even getting a chance to sit for placement because अच्छा. CGPA down था. CGPA low I had है. a backlogs हाँ. and even I got one chance for the Atos company. Okay. One chance and I thought कि even though the package is very less, I need to give it a shot and I need to grab that offer because अभी almost final year आपका खत्म होने वाला है. So you need to get that opportunity or campus placement anyhow. Package था 6.5. ऐसे मुझे लग रहा था that 6.5 है, but it was not that true. Of course. The offer was for the Bangalore location. Okay. The basic was 3.5 something. Right. And जो उनका बोनस था if you stay there for couple of years, 2-3 years. हाँ, that was 3 lakh somewhere. Okay. तो मुझे लगा ऐड करके ऐड करके आई थॉट कि ठीक है, मतलब मंथली मुझे अगर 40-50 हज़ार में मिल जाता है दैट इज इनफ फॉर मी. सो आई गॉट प्लेस्ड इनटू एटॉस फार्म. उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ दिस इज नॉट द एक्चुअल ऑफर विच आई गॉट. और बट हाँ, whoever watching this ना, मुझे बहुत ऐसे क्वेरीज आते हैं कि कब तक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग. सो आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज. जब आपके दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है 11-15 लाख, 20 lakhs, 40 lakhs, and you can't even crack company of 5 lakhs. So I've been into that stage. But luckily I got this offer. I was happy. And by the end of the year, मतलब जब 3 महीने बचे थे, so they asked, are you interested to do internship, remote internship with us? Okay. So that is how I got my first internship. उसके पहले मुझे internship का concept भी नहीं पता था. And seniors वगैरह वहाँ पे PICT में I was not in touch with any of the seniors. Okay. Because most of जो बच्चे होते हैं they will come for the class, उनके दोस्त, and then go back to home. पूरा पढ़ाई पे फोकस एंड कैंपस प्लेसमेंट पे फोकस, वही था सबका रूटीन. सो ओनली जो आर्ट सर्कल के सीनियर्स थे वही. सागर, ये पूरे स्टोरी में आई वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली. आई हैव नोटेड 3 things which I realized. Okay. Right? One is you have a very strong sense of realization of what is going on in your life and what is happening around. हाँ. You're not kidding yourself. Yes. कि अरे ठीक है, हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बहुत ऑसम हूँ, मैं तो गांव से निकल के आया हूँ, इतना कर लिया तो ये भी कर लेंगे. यू हैव अ वेरी डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि लाइफ में मैसअप कर दिया है. Yes. अब उसको ठीक करना है. Yes. राइट. Yes. दैट इज फर्स्ट वन. Yes. सेकेंड, यू हैव सम अमाउंट ऑफ फेथ ऑन समथिंग कि ये हो जाएगा. Yes. वो या फिर मैं कर लूंगा, या मैं कर लूंगा. हाँ. राइट. वो खुद में फेथ है, गॉड पे है, पेरेंट्स पे है. आई डोंट नो वो कहाँ से आ रहा है फेथ, बट दैट आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेथ कि प्रॉब्लम है, मुझे समझ आ गई है, हाँ, मैं कर लूंगा, फिक्स कर लूंगा. Yes. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू पुट योर सेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस विच यू नो विल हेल्प यू ग्रो. Yes. Right? These 3 I'm seeing as a constant theme. Yes. In what you were talking. Yes. But that is so beautiful because that is what makes a person successful. Yes. And I really hope you never lose that. That is what I want to say to my all the students जो भी है, because life is about उधर बोल, वो कैमरा वहाँ बोला, बताइए. life is full of ups and downs. तो फिर आपको give up नहीं करना है. I'll tell you the later part of the story. When I felt like giving up everything, Okay. I was also into that situation. Somehow I was gathering the positivity around me कि मुझे करना है. और एक चीज़ मैंने आपको पहले बोला था that whenever I feel low ना, I go to my village. मतलब even during my diploma struggles, even my degree struggles, I just go to my village and talk to older people in my village. Okay. क्या होता है उससे? They used to share the stories of my grandparents, my parents, कि your father and mother is doing farming work. तुम जाके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, so you need to keep up doing that. मतलब don't ever lose hope. पर उससे प्रेशर नहीं आता? No, never. I feel it like a very warm hug to me. There is someone कि ठीक है, कर लोगे तुम. बैक आती है. हाँ, कि मेरे पीछे कोई है. और ये चीज़ ना आपको अभी के जनरेशन में नहीं मिलेगा. आई डोंट नो, दे व्हाई डू यू से दैट?
बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव और गलत गाइडेंस देते लोग एंड एवरी वन फील्स लाइक ओके आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि क्या करना है इवन दो दे हैव नॉट बीन थ्रू एक्चुअल सिचुएशन. जो मेरे गांव के बूढ़े लोग ये है उन्होंने पूरा जर्नी देखा है मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एंड देयर ओन जर्नी. तो मुझे उन लोगों से सीखने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट आता है. दे हैव लिव्ड लाइफ ऑफ 80 years. उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. लेकिन वो आप दे कांट अंडरस्टैंड योर कॉन्टेक्स्ट, राइट? They don't know that what is the struggle in a college, in city, what you're going through. So how do you connect those two? Yes, that is on me. कि मुझे Exactly. I want you to talk about that. Because that is the missing thing. Yes. Right? How do you take an experience of an 80-year-old villager who's never left the village? Yes. And how do you take that lesson and take it to your learning in a city which is completely different? Yes. How do you distill that? There are two sides of this. Right. एक जो story मुझे पता है that I have been struggling with. एक story उनको पता है that my parents have struggled with. Right. But बीच में एक line है that they also know that I have gone from my village to another city and taking education in very good college. इतना उनको context पता है. Correct. So they just keep on realizing me कि कुछ भी हो जाए तुम्हें करना है बस. तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एंड अभी भी वो लोग देखते हैं कि मेरे फादर है, मदर है, दे वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग विदाउट अलार्म क्लॉक. तो मुझे उनसे तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि आप सुबह उठो, आपका काम करो, जो जितना मिल रहा है उसमें आप यू कैन लिव वेरी हैप्पी लाइफ. सो दैट इज़ इनफ फॉर मी. मतलब I don't like reading books वगैरह जो motivational आता है. I like to listen the stories of the people who are living that life, difficult life and have gone through difficult life. उनके story से मुझे ज़्यादा inspiration मिलते हैं. So वो dots में connect करता हूँ कि मुझे क्या करना है and why I can't lose the hope on myself and then keep on going on. That is your fuel. हाँ, that is my fuel. Which drives you. Yes. Wow. मैंने आपको जो बोला था मैं गांव में जाके आई टॉक टू माई डॉक्टर मेंटर जो है, बस वो भी हमारी कभी कभी बातें होती है कि तुम यहाँ पे थे, यू आर यू नो रीडिंग अंडर द ट्री. मतलब कभी पेड़ पे जाके कभी पढ़ रहे हो या फिर यहाँ पे आंगन में जाके घूम के पढ़ रहे हो. तुमने तब भी पढ़ाई की थी जब लाइट नहीं था दिया आपके ऊपर. देन he keep on realizing all the stories. He makes you realize that of how far you've come. Yes. That is so nice. Yes. तो वो बहुत ज़्यादा है. मतलब that is enough for me. Yeah. Yes. But that's such a beautiful reminder क्योंकि हम सब ने कोई ना कोई डिफिकल्ट टाइम तो फेस किया ही है. Yes. ओवरकम भी किया है. Yes. लेकिन हमें खुद ही याद नहीं रहता. Right? Yes. So you need somebody to remind you that if you have done this, yes, then you can do this also. Yes. That's so beautiful. Okay. So from that sagar to becoming a Docker captain, a CubeSonaut, CNCF ambassador, CNCG Pune lead. Yes. What's the impact of this? So much. So this is a struggle, but and this is a result of that. Exactly. That's why I jumped directly here. Now tell us the mental shift that happened because of which this result has happened. So as on the point of college placement, जब internship वगैरह चल रहा था, but एक छोटा सा story है. By the end of my PICT college days ना, I was sitting in my sitting library. Okay. And I met one of my senior who submitted, who completed his GSOC, Google Summer of Code, Okay. 1 of year back. So I was asking him कि क्या होता है open This was source. 2018. 2018, yes. When you failed the GSOC. Yes. मैं रिसर्च करके आया हूँ, ऐसी बात नहीं है. Okay, go on. Yes, I was sitting in library and then मैंने उनसे पूछा कि ओपन सोर्स क्या होता है, गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, जस्ट मुझे बताओ, अभी मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, देयर इज नथिंग आई नीड टू डू. सो ही टोल्ड मी कि
दिस इज अ साइट, यहाँ पे जाके पढ़ो वगैरह एंड देन जस्ट फिल आउट दी फॉर्म. मुझे लगा कि जस्ट भरना ही है ना, कुछ भी लिख के कॉपी पेस्ट इधर से उधर से. वहाँ उस टाइम ChatGPT नहीं था, बट यू कैन स्टिल कॉपी फ्रॉम अराउंड. तो हम बचपन से कर रहे हैं. उसमें क्या है? Then I submitted GSOC for I guess one of organization LibreOffice or somewhere. Okay. On the very last day. कुछ होप था नहीं था. आई स्टिल डोंट नो दैट फीलिंग, बट आई सबमिटेड कि मे बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा. Of course, I failed. I got the result that I did not had any strong proposal and never contributed for open source and particularly that organization. Correct. But I still keep on checking about open source. That is how I started. Then I started attending meetups in Pune. Okay. First meetup which I attended was Docker Pune. बहुत दूर दूर था, but I still used to go to meetup. Why did you used to go? To meet people. मतलब एक तो फियर मुझे पता है दैट उस टाइम पे मुझे लोगों से ज़्यादा बात करने में प्रॉब्लम होती थी, या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको सीनियर्स के लिए या फिर कंपनी के लोगों से बात करने के लिए वो थोड़ा डिफरेंस लगता है. हेजिटेशन होता है. क्या बात करूँ या फिर क्या क्वेश्चन पूछूं, और फिर वो उसी लूप में चले जाते हो. करेक्ट. तो मैंने सोचा कि ठीक है चले जाते हैं ना, मतलब क्या ही होगा, सीखने के लिए मिलेगा. अनकंफर्टेबल सिचुएशन अगेन. आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ओपन सोर्स हैकाथॉन जो पुणे में वगैरह होते थे. कुछ कंपनीज है जो ऑर्गेनाइज करते 24/7 हैकाथॉन. वहाँ पे जाके लोगों से बात करना चालू कर दिया. आई गॉट सम ऑफ कनेक्शंस एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड होस्टिंग माई डॉकर मीटअप्स फ्रॉम देयर. बिफोर दैट आई वॉज गिविंग टॉक्स एज वेल. Okay. मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद जाके परसिस्टेंट में एक मीटअप था, एंड आई गेव अ टॉक ऑन डॉकर. ओके. मैंने maybe 20-30 people. नहीं, Smaller? very big meetup. Okay. More than 200 crowd. Okay. एंड परसिस्टेंट का स्टेज जो है ना, इट्स काइंड ऑफ कल्चरल एक्टिविटी वाला स्टेज. आप पूरा ऑडिटोरियम है. I know that place. सो उस मोमेंट के बाद तो पूरा ही चेंज हो गया. That I can talk to people and I can make them listen to me. कुछ भी हो जाए. Correct. I prepared a lot on the Docker. They were coming, very senior guys were coming and asking questions on Docker. तो मुझे लगा भाई तुझे भी आता है. You can also do it. Then I started organizing this Docker Pune meetup. Yes, that is how I started my journey. So I had written a question. Okay. And the question was कि टिपिकल अगर किसी 4-5 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे से बात करो ना कि तुम्हारा क्या प्लान है अभी, या ये वीकेंड का क्या प्लान है, द टिपिकल आंसर जो वो बताते नहीं है, बट जो रियल आंसर है कुछ नहीं, दारू पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे. बट व्हेन आई थिंक अबाउट सागर, द आंसर इज अरे वीकेंड आ रहा है, मुझे ये मीटअप पे जाना है, ये ऑर्गेनाइज करना है, ये स्पीकर से बात करनी है. सो माई क्वेश्चन वॉज कि ये डिफरेंस कहाँ से आता है सागर में, बट उसका आंसर मुझे मिल गया ऑलरेडी. वेरी स्लाइट डिफरेंट, मतलब कुछ एडिशन करना चाहूँगा. सागर इज नॉट टेक्निकल, ओनली टेक्निकल का है. करेक्ट. अगर आप मुझे कहीं पे फॉलो वगैरह करते हो या फिर रीड करते हो, सो विल नो दैट आई लाइक टू कीप द बैलेंस इन माई लाइफ, नॉट ओनली टेक्निकल. मैं सुबह उठ के, नाउ माई न्यू स्केड्यूल इज wake up early, record one-off video for my channel. Yeah, I've started seeing those videos. Correct. Then I go to the gym. हाँ, वो एक पार्ट मेरा मिस हो गया. Talk about your fitness journey also. Yes. I go to the gym, come back, then I walk straight for 6-7 hours for my office. Okay. उसके बाद वीकेंड पे मेरा कम्युनिटी कॉल रहता है. Correct. और मंथली एक मीटअप रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मीटअप, जो बाकी के वीकेंड्स है, आई गो टू ट्रेक एज वेल. मतलब मुझे ट्रेकिंग, आई लाइक ट्रेकिंग. ठीक है. या फिर किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना. सो दैट सागर इज ऑल्सो प्रेजेंट. मतलब आई लाइक टू कीप अ बैलेंस इन माई लाइफ. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ऐसा क्यों नहीं कि ट्रैक छोड़ूंगा तो 3 वीडियो और रिकॉर्ड कर लूंगा, 2000 व्यूज और आ जाएंगे, 5000 सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे, वो क्यों नहीं? इस पूरे जर्नी में ना आई रियलाइज कि मुझे पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है. ठीक है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे ज़्यादा मैटर करती है. लाइक व्हाट? इफ़ आई एम गोइंग टू सम मीटअप, है ना,
तो आई एम टॉकिंग टू मल्टीपल स्टूडेंट्स. जब they hear some answers or my story, they get inspired. But when I am going to trek या फिर when I am going to the gym, that is for me as well. Correct. Because it's my life. Yeah. तो मुझे खुद के लिए भी जीना है, बाकी के लोगों के लिए तो जी रहा हूँ. But I want some time of my 24 hours, out of that 24 hours, to for myself, to live my life. अगर मैं पैसा के पीछे भागूंगा, I can also do 20 hours, 15 hours work for my office. Correct. But क्या ही होगा ना, पैसा तो उतना ही मिल रहा है, right? Even if I work for a couple of hours more, they are not going to pay me extra. Correct. That is why that is a self-realization for me कि कुछ time you need to give to your community, for yourself, your family, your friends, and then your office. That is how you can keep a balance. And that again goes back to your self-realization thing. Yes. That you've been able to compartmentalize things. Yes. Right? And that thing that you're saying कि मुझे खुद के लिए भी टाइम चाहिए. Yes. That is such an important thing because वो अगर टाइम आपने दे दिया, it fuels everything else back. Yes. Right? Yes. The mistake that I see a lot of people doing is they get so serious doing something that they forget about themselves. Yes. I had a talk with one of my student. He also have kind of same background, Okay. but he works like crazy. मतलब 18 घंटा कुछ काम करता होगा. Okay. And just sit on laptop. Right. No friends. Right. जब भी friends पूछते हैं ट्रिप पे जाना है, no. I never say no to any trip. आप बताओ कब जाना है, ऑफिस का मैं देख लूंगा, बट आप ट्रिप फाइनल करो एंड आई विल कम टू दैट, बिकॉज फ्रेंड्स आल्सो मैटर्स अ लॉट. Absolutely. एक छोटा सा स्टोरी है. आई टोल्ड यू कि एक ऐसा पॉइंट था इन माय लाइफ, लास्ट ईयर का ही है, व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप. मतलब नथिंग इज वर्किंग फॉर मी. What do you mean nothing is working? हाँ, सो बैक टू बैक कुछ इंसिडेंट्स हो गए. आई लॉस्ट समवन इन माई फैमिली, वेरी क्लोज. अगेन अनदर ब्रेकअप, एंड breakup was not that big deal. Okay. But somewhere I am emotional person. Of course. I was very connected to my grandmother, and she passed away. Okay. And again the series of these incidents happened back to back. फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप से आपको लड़की से धोखा मिलेगा वो ज्यादा दर्द नहीं करता, बट इफ यू गेट बिट्रेड बाय फ्रेंड ना, वो ज्यादा बहुत दुख देता है. तो आई वाज क्वेश्चनिंग माय लाइफ एट दैट पॉइंट, व्हाई मी? मतलब इफ आई एम हेल्पिंग सो मेनी पीपल, इफ आई एम बीइंग काइंड, मतलब मेरे पास रिटर्न, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. Correct. देन व्हाई इज गॉड डूइंग दिस टू मी? एंड वो फेज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. इतना डिफ़िकल्ट था कि मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि रियलिटी क्या है. इज दिस रियली हैपनिंग? मतलब, और इज इट लाइक कैन आई पिंच माई सेल्फ एंड वेक अप माई सेल्फ? हाँ, जैसे मैं हूँ ना, आई एम काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वाला बंदा हूँ, तो फिर मैं खुद से चीज़ें फिगर आउट कर लेता हूँ. वो कंपास रीसेट नहीं हो रहा था. हाँ, वो हो नहीं रहा था मेरे से. Almost 2-3 months. Then I put into different situation कि मुझे जॉब स्विच करना है. Okay. यहाँ पे एक तो एक चेंज, अनकंफर्टेबल जोन आ गया. हाँ, मुझे एक चेंज चाहिए. ठीक है. If I want to come out of this situation ना, either I need to start working very much for my community or for myself or interview. जब मैं उस जोन में जाऊंगा, देन ओनली आई कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. तभी मैं ये सारी चीजें भूल पाऊंगा. दैट्स योर मिनी रीसेट. यस, मिनी रीसेट. अदरवाइज मतलब बहुत ही आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, घर पे किसी को पता नहीं, बट दैट वाज द पॉइंट कि मतलब नहीं होना चाहिए मेरे साथ, या फिर आई वांट टू स्टॉप इट. मतलब जस्ट आई वांट टू टेक अ ब्रेक, रिजाइन इट, गो टू सम ट्रेक या फिर हॉलीडे ट्रिप वगैरह करो. And after that, I'll figure out something. But then I started going to the gym again. Okay. पहले से जिम करता था, बट वो इतना डिप्रेशन वाला फेज था ना कि जिम भी करने का मतलब नहीं लग रहा था.
बट जिम इज़ द वन थिंग विच हेल्प मी अलॉट. तो अभी बहुत लोग पूछते हैं कि तुम जिम क्यों जाते हो, मतलब क्या तुम्हें सिक्स पैक्स बनाने हैं या फिर क्या बनाना है. भाई वो रीज़न नहीं है. नहीं है, करेक्ट. आई एम नॉट गोइंग टू द जिम फॉर गेटिंग सिक्स ये बाय प्रोडक्ट है. बाई बाय प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है, करेक्ट. हाँ. जब कोरोना हुआ था ना, आई वॉज हेवी वेट अराउंड 85 kgs. अच्छा. मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था. और एक मेरे दोस्त ने बोला कि सागर तुम ऐसे सूजे सूजे लग रहे हो. बहुत ज़्यादा बुरा लगा. लड़की ने बोला, दिल पे लगी. बहुत ज़्यादा दिल पे बुरा लगा मुझे. और मैं उससे झगड़ रहा हूँ, देख ऐसा बोलना नहीं चाहिए. और मुझे नहीं लग रहा कि आई एम ओवरवेट. जब मैं जिम में जाके खुद को देखा, भाई तुम्हारा वेट बढ़ा है, दिस इज लॉकडाउन का इफेक्ट. यू नीड टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम. कुछ महीने में आई लॉस्ट वेट. ओके. एंड देन अभी फिट, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 years और मोर देन दैट आई नेवर मिस जिम. मतलब दिन What does going to the gym mean for you? मेंटल फिटनेस. How? जिम इज फिजिकल. Physical, डंबल उठाए, yes. रनिंग किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, उससे मेंटल कैसे आता है? यस करेक्ट. तो फिजिकल फिटनेस लोगों को दिखता है, बट जो मेंटल जो बेनिफिट्स है, मेंटल फिटनेस बेनिफिट्स, पीपल डोंट रियलाइज दैट. जब आप जिम में जाते हो ना, जस्ट पुट योर मोबाइल अवे फॉर 2 hours. यू आर कम्प्लीटली इन टू योर जोन. और जो मुझे अच्छे आइडियाज आते हैं, दोज आर ड्यूरिंग दैट जोन ओनली. ओके. आई टेक दैट टाइम फॉर माई सेल्फ रियलाइजेशन. जैसे मैंने बोला आपको कि देयर वाज अ फेज, डिफिकल्ट फेज. आई कंटिन्यूसली यूज टू थिंक कि क्या कर सकता हूँ डिफरेंट, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन की जो इजीली गिव अप कर दे. सो आई हैव टू फाइंड आउट अ वे टू कम आउट ऑफ दैट. देन आई रियलाइज कि इंटरव्यू देना चालू कर दो. थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा, बट स्टिल यू विल गेट अ गुड हाइक. व्हाई नॉट? सो एक बात मैं आपको बताना भूल गया. व्हेन आई जॉइन my first company, GS Lab, I was getting paid 25,000. Okay. And still जो education loan था, so for that I was repaying 15,000 from that. बचा मेरे पास 10,000. 5,000 घर पे देना है. हाँ, अच्छा घर पे भी देना है. 5,000 घर पे देना है, बिकॉज अभी बच्चा आपका कमाने लगा है ना. हाँ, तो एक्सपेक्टेशन है नेचुरली. और आपको रेंट देना है. जो भी बचता था, द अमाउंट वाज क्या बचता वड़ा पाव के लिए. ऑफ कोर्स. हाँ, तो PICT में भी 3 टाइम नहीं आएगा वड़ा पाव भी. नहीं आएगा. हाँ. PICT में भी वड़ा पाव खा के मेरा पूरा चला था. एंड देन GS Lab का पूरा कुछ 1-1.5 साल वड़ा पाव पे चला. बाकी के कलीग्स बोलते थे कि मतलब यू कैन टेक सम हेल्दी मील, बट है नहीं ना मेरे पास. आई कैन टेल एनीवन जो चल रहा है. देन आई मूव टू अवाया. अवाया में थोड़ा अच्छा पैकेज मिला. देन VMware was the best part of this whole journey. I felt lucky कि मुझे ड्रीम कंपनी लाइक VMware में जॉब मिला. अभी क्राउड स्ट्राइक में बहुत ही अच्छा चल रहा है. रिमोट वर्क है, गेटिंग गुड पैकेज. तो ये सब कुछ चल रहा था. एंड ये मेडिकल, ये सॉरी मेंटल फिटनेस के बारे में जो आपको बता रहा था. सो थ्रूआउट दिस जर्नी द जिम इज द ओनली थिंग वाज स्टिक विथ मी, जो हेल्प कर रहा था मुझे टू गेट बैक ऑन माई फिट्स, टू नॉट गिव अप एंड हैव दैट करेज दैट यू कैन डू इट. देयर विल बी लॉट ऑफ सच इंसिडेंट्स इन लाइफ, बट अभी तक तो कर लिया है पूरा. कर लेंगे आगे भी कर लो. So gym is what gives you the time to reflect on yourself. Yes. It gives you the discipline. Yes. It also puts you in touch with yourself, and that's what you get from the gym. Yes. And then ये डोले तो बन ही जाते हैं. It helps, yes, of course. Yes. This is what the journey people need to know. Yes. Right? How you cracked Kubernetes exam that you're anyway sharing with people. That doesn't matter. There are 1,000 other ways to figure that out. Yes. Right? This बहुत has to ज़्यादा resources हैं. Correct. This has to be real. Yes. Right? It has to come from heart. That is what matters, man. Yes. Anything you want to ask me, Sagar? You are also into meditation, I guess, spirituality. So any tips from you? मतलब आपके लाइफ में spirituality
क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू आर ऑल्सो इनटू टेक, तो फिर So it started with my wife had certain medical conditions, ओके right? And we started looking for answers. Similar thing. मैं क्यों? हाँ, मुझे क्यों? बाय मी, Why me? It starts always starts from there. हाँ, Right? And then we started going deeper that there has to be a bigger purpose to life, bigger meaning to life. यस, Right? So that's where it started. And then, like they say, right, when the student is ready, the teacher will appear. यस, One thing led to the other, and then we have been on this journey for a while. But why I keep going back to spirituality is the same reason you go to the gym. It connects me with myself. यस, वेरी So- इम्पोर्टेंट, So last whole week, I was in I'm part of a group called the Tranquility. They're based in the UK. And every year we do a 1 week retreat, which is meditation, healing, lot of other things, right? So we invite people over, they come, it's a paid thing. ओके, And we do it in exotic locations all across the world. So last week I was in Austria and complete disconnection. I told my office, they also know that for 1 week this guy will go every year. I switch off my phone. I just switch it on for 5 minutes to talk back home to my daughter, my wife, and that's it. Complete disconnection from everything, and then go within and then try and help some people. यस. That's the anchor. I think in the current situation, this is very much important because there are so many things you can get distracted from. Instagram Reels, LinkedIn post, Yeah. Twitter, for technical people at least. Huh? Yeah. For other non-technical people, I don't know what they get distracted from, but yes, it is very much important for you to use that 1 hour or 2 hour of your life to connect with yourself. Just go on the walk, या फिर gym जाओ, meditation करो. There are so many benefits. Whatever works for you. Yeah. Whatever. Correct. और Very important. और एक बेनिफिट है ना दैट आपको 24 hours everyone gets it, but many of people keep on complaining that they don't have time to go to the gym या फिर walk or to spend time with their family. This is just a excuse. Agreed. आप जब जिम जाना चालू करोगे या फिर आई विल टॉक फॉर माई सेल्फ, Yeah. बहुत बिजी लाइफ है मेरी भी. I need to record the podcast, videos. Then I also do open source contribution, part of some CNCF organizations, office work. फिर से फ्यूचर का कुछ प्लानिंग वगैरह, फ्यूचर सीरीज का प्लानिंग रहेगा. मेरे भी लाइफ इज द सेम, बट आई मेक श्योर कि मुझे कुछ भी हो जाए दिन में या शाम को, आई हैव टू गो टू द जिम. और अभी तो मेरा थोड़ा टारगेट चेंज हो गया दैट आई वांट टू हिट 200 kg डेडलिफ्ट धीरे धीरे. Okay. हाँ, बट मैंने भी थोड़ा 20 kg 40 kg ऐसे स्टार्ट किया था. नाउ आई एम हिटिंग 180 kg. Oh. तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है ना अभी धीरे धीरे, ओके यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब मुझे तब नहीं पता था दैट आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 180 kg डेडलिफ्ट. That's a lot, man. हाँ, बट वो जो आपको एक और एक रियलिटी चेक मिलता है दैट देयर इज सो मच पोटेंशियल इनसाइड यू. यू जस्ट नीड टू look inside and then find out what is it. Absolutely. That is so beautiful. Yes. So, Sagar, last question. What's your plan for the future? What are you thinking? Okay. For the community, I have achieved almost everything. I am a Docker captain, Right. SenseUp ambassador. Yep. Couple of things I've left, like HashiCorp ambassador and AWS Hero, but that's not a big thing for me. I want to make sure my community, Pune community, Docker community and SenseUp community grows a lot. I am including newcomers and then जो existing है members, I am guiding them to become a leader. Okay. So उनको guidance देना है. Finally, I want to find out time to visit more and more colleges and students, schools in rural areas and guide students. Okay.
उसके बाद लाइफ का एक ही गोल रहेगा, गाँव जाओ, जाओ. yes, and get settled and then work from there. Maybe remote, I'm still working remotely, but focus will be on making those students industry ready, because है ना, मतलब मेरे लाइफ में मैंने अभी तक जो भी हुआ है, आई एम हैप्पी विद दैट. आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, बट आई वांट टू चेंज लाइव्स ऑफ more people and more students. So, if there is a student sitting in a tier 2, tier 3 college in a tier 2, tier 3 city or a small town and thinking, मेरा क्या होगा life में? What's your one message to them? Find the right mentor. We are always here now. Sure. They know you. I am here. They can always talk to us, and just figure out your goal. Stick to that. There will be more ups and downs, but don't ever think about giving up. That's not you. I have done it. I have been through a lot of things, but that is I always keep on telling to myself, and I want to tell everyone else as well. Never think about giving up. You are more stronger than you can think of. Just believe in yourself and get back on your feet now again. Awesome. Fantastic. Any last thoughts, Sagar? I'm happy that you invited me on your podcast. It's such an privilege for me. Always thought that nobody wanted to hear my story. I am not ready to share my story yet. There is so many things I am yet to achieve. But I think this is the right time to tell my story and to inspire many more students and people. Thank you so much for opening up, because you don't know how many people will reach this, will watch this video. And I always look at it this way: whenever I record a podcast or a video, if there is one person who watches this and we can make a little dent in that person's life, Yes, all of this hard work is worth it. yes, Right? It's that one person true. sitting somewhere, feeling depressed, watching it at 3 in the morning and saying, अगर सागर कर सकता है तो साला मैं क्यों नहीं फोड़ सकता? वही चाहिए, yeah. उतना ही है. Yes. Can I add one more thing? Of course, yeah. So I do community work. I want to talk about that. Yeah, of course. I have recently started a YouTube channel, and couple of different things I keep on trying. So weekly मेरा community call रहता है for the same reason, because I get messages on the LinkedIn that can I connect with you. So anybody can join that community call? Yes, it is open for everyone, but many of people don't know about it. So it's How do they reach out, or how do they join that call? all the links are available on my LinkedIn profile. On your LinkedIn profile. हाँ. ठीक है. There's a link to my Discord community server. ठीक है. There are 1,700 people are there on my Discord On server. your Discord. Yeah. Wow, okay. I'm mostly 24/7 available. Yeah, and my community. So if you get any question, they will happy to answer anytime. Then this is the community call, weekly community call, which I connect with them. Sunday 9 p.m. IST होता है. Okay. उसके बाद recently I started job posting series. Okay. Same reason. I struggled a lot to find the jobs and internships. So I want to help more and more So people. where are you posting these? In On the my- Discord. On my YouTube. So I talk about the job opening, how to apply for that opening, the JD, how to prepare for that interview, and many more things. So it gives a clear idea about that opening. Yes, that is another thing. And recently I started teaching Linux and networking. So clear cut roadmap I wanted to create. That's also on YouTube? Yes, that's on YouTube. Okay. And final initiative is season 1 challenges. I saw that. Yeah. Daily DevOps SRE season 1 challenges. वो एक क्वेरी आ रहा था ना मुझे फ्रॉम मेनी पीपल कि हम सर्विस बेस्ड कंपनी से हैं या फिर वी आर इन द कंपनी जहाँ पे हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वी आर फ्रेशर, वी हैव नॉट वर्कड ऑन गुड प्रोजेक्ट्स. सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि एक बार ना मुझे चांस दे दो एंड आई विल सॉल्व दैट फॉर यू. सो आई क्रिएटेड 50 projects. 50 projects. 50 projects are the challenges. Okay. Which, if they solve it, those are more than enough to crack very good companies. When people have cracked Apple, such big FANG type of companies.
I have got very good reviews on that. Yeah. जैसे आपने बोला that if any one person is watching this and if this podcast changes their life, that is why I thought let's make it more visible, these initiatives. And if any person gets job through these initiatives, that is the best feeling. I have got so many messages after people who have attempted all these different things, job openings and solving season 1 challenges. Yeah. That's amazing. So we'll link your YouTube, your LinkedIn in this video also, so that people can go there and reach out to you. Yes. Perfect. Thank you so much, Sagar. Thank you Thank very you for much. doing this. I Yes, appreciate thank you, it. Baji.